Hello students, this is Bubun sir. Today I am going to discuss operators from numerical analysis. तो हम लोग का आज का जो फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय दिस symbol, triangle symbol known as delta. The pronunciation is delta. All right. The operator delta called forward difference operator and is denoted by delta of y suffix k equals to y of k plus 1 minus y of k, or delta of fx equals to f of x plus h minus f of x. Means अगर f of x एक फंक्शन है उसके ऊपर अगर हम लोग डेल्टा ऑपरेटर यूज करेंगे तो रिजल्ट और आउटपुट आ जाएगा f of x plus h minus f of x. All right. This is actually first order forward difference operator. Similarly, second order forward difference operator is denoted by delta square f of x. Now what is delta square f of x? Delta square f of x is delta of delta f of x. All right. Now delta of fx, delta of fx is again f of x plus h minus f of x. So we can apply delta on both these terms because these operators are linear operators. So delta of f of x plus h will माइनस डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स. अभी देखो ये हम लोगों को स्प्लिट करना है अलग से और इसको अलग से स्प्लिट करना है. तो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, नाउ दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स, मैंने एक्स लिखा क्योंकि ये हम लोग का एक्स है, प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. ओके, दिस इज आवर एक्स फॉर दिस केस. सो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच. सिमिलरली डेल्टा ऑफ x इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. अभी ब्रैकेट्स को ओपन करने से आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस 2f ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स. सो दिस इज आवर second order forward difference operator. Similarly, we can easily find third order, fourth order, fifth order and so on forward difference operator. So what is forward difference operator? Forward difference operator is delta, where delta of f of x equals to f of x plus h minus f of x. Our next operator is backward difference operator. Backward difference operator is denoted by this triangle sign. तो इसको हम लोग pronounce करेंगे nabla, N-A-B-L-A. All right. Now what is nabla of f of x? Nabla of f of x is f of x minus f of x minus h. Okay. Nabla of f of x is f of x minus f of x minus h. See, the operator nabla called backward difference operator is defined by as nabla of y of k equals to yk minus y of k minus 1, or nabla of f of x equals to f of x minus f of x minus h. यहाँ पर ये जो nabla है, this is first order backward difference operator. Similarly, second order backward difference operator is nabla square f of x. Nabla square f of x will be nabla of nabla f of x. तो इसको पहले की तरह हम लोग सिंप्लीफाई करने से उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा nabla square f of x is f of x minus 2 f of x minus h plus f of x minus 2h. ऐसे हम लोग चाहे तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते. नेक्स्ट ऑपरेटर इज शिफ्टिंग ऑपरेटर. शिफ्टिंग ऑपरेटर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल E. All right. Shifting operator is generally denoted by capital E, where capital E of f of x is f of x plus h, or you can say E of y suffix k shift होके next range में चला जाएगा k plus h, or you can write k plus 1. Okay, k plus 1 in this way. So the operator E called shifting operator is defined as E of y of suffix k equals to y of k plus 1, or E of f of x equals to f of x plus h. This is actually first order shifting operator.
In the previous way, we can find second order shifting operator, that is e square f of x. Now e square f of x is e of f of x, okay, that is e of, this is our f of x plus h according to definition. अभी अच्छी तरह से सोचो कि ये जो फंक्शन है और ये जो वैल्यू है ये हम लोग का x है, तो e ऑफ f ऑफ x प्लस h आ जाएगा f ऑफ x, ये हो गया x प्लस h, ओके, दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 2h. ऑलराइट, so this is second order shifting operator. Similarly, we can find third order shifting operator e cube f of x plus f of x, that is equals to f of x plus 3h. Fourth order will be e to the power 4 f of x, that will be f of x plus 4h and so on. So basically न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये जो तीन ऑपरेटर्स अभी तक हम लोगों को पता चला, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर, इन तीनों का ही सबसे ज़्यादा काम है, या फिर कहा जाए तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग आगे जाके जितना भी मेथड्स देखेंगे या फिर सीखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा ये तीनों ऑपरेटर्स का यूज़ होगा. इन तीनों को छोड़ के भी और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स है, उनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, जैसे पहला ऑपरेटर है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर. सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल्टा, ओके, दिस इज आल्सो डेल्टा. द फर्स्ट वन इज कैपिटल डेल्टा एंड दिस इज स्मॉल डेल्टा, और यू कैन सिंपली से दिस इज डेल्टा. सो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो स्मॉल डेल्टा है उसको डिनोट किया जाता है डेल्टा इक्वल्स टू ई टू द पावर हाफ माइनस ई टू द पावर माइनस हाफ. ये तुम लोगों को मेमोराइज करना है. सो यू कैन राइट डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर हाफ एफ ऑफ एक्स माइनस e to the power minus half f of x. All right, now what is e to the power half f of x? That is f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2. Okay, so this is called central difference operator. Next operator is averaging operator. Averaging operator is denoted by mu. This is our mu, and mu is e to the power half plus e to the power minus half all divided by 2. All right, mu is e to the power half plus e to the power minus half all divided by 2. Then mu of f of x will be e to the power half f of x plus e to the power minus half f of x whole divided by 2. That is e to the power half f of x is f of x plus h by 2 plus f of x minus h by 2 whole divided by 2. So this is our mu of f of x, okay, and this is known as averaging of. Next is relation between forward, backward and shift operator. तो यहाँ पर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ शिफ्ट ऑपरेटर का रिलेशन तुम लोग को डिफाइन करके दिखाऊंगा, और इसमें जो रिलेशन आएगा तुम देखना कि आगे जाके वो सब रिलेशंस भी काम में आता है, और इसका डिराइवेशंस में भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है. तो इसका डिराइवेशंस अच्छी तरह से तुम लोगों को याद रखना है एंड प्रैक्टिस करना है. फर्स्ट इज ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ये हम लोग को पता है, डेफिनेशन है. सेकेंड ऑर्डर शिफ्ट ऑपरेटर ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस 2h. कुछ देर पहले मैंने देखा तुम लोग को बताया. ई क्यूब एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस 3h. अगर ऐसे हम लोग करते रहे तो बाय सिमेट्री वी कैन से ई टू द पावर n ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस nh, वेयर n इज एनी इंटीजर. ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है. अगर यहाँ पर n आएगा तो यहाँ पर h के साथ n आ जाएगा. तो इसको अच्छी तरह से समझ लो. नाउ अगेन फ्रॉम डेफिनेशन डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर.
अभी हम लोग को जैसे कि पता है कि e ऑफ f ऑफ x इज f ऑफ x प्लस h, तो अगर हम लोग f ऑफ x प्लस h के बदले e ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं, बाकी जैसा है वैसा रहने दो। इन दोनों में से अगर हम लोग f ऑफ x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक 1 है, तो e माइनस 1 रहेगा ब्रैकेट में, बाकी f ऑफ x रहेगा। नेक्स्ट टर्म में अगर हम f ऑफ x को नहीं लिखेंगे तो क्या रहेगा, डेल्टा इक्वल्स टू e माइनस 1। लेकिन गलती से भी ऐसे f ऑफ x तुम लोग को नहीं काटना है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा इक्वल्स टू e माइनस 1। So this is our first relation between forward difference operator and shift operator. Next relation is between backward difference operator and shift operator. According to definition हम लोग को पता है कि nabla of f of x होता है f of x minus f of x minus h. Okay? नेक्स्ट लाइन में देखो f of x minus h के बदले मैंने लिखा e to the power minus 1 और e inverse f of x. ये कैसा है? अभी हम लोग को पता है कि e to the power n f of x इक्वल्स टू f of x प्लस एन एच होता है, where n is any integer. ओके, तो अगर हम लोग n के बदले माइनस 1 डालेंगे तो क्या आएगा, आएगा e टू द पावर माइनस 1 f of x, दैट विल बी f of x माइनस h. ओके, तो मैंने देखो यहाँ पर f of x माइनस h के बदले e टू द पावर माइनस 1 और यू कैन से e इनवर्स f of x लिखा है, बाकी सब सेम ही है। तो अभी इन दोनों में से हम मुझे f ऑफ x कॉमन लेना है, तो यहाँ पर रहेगा 1 माइनस ई इनवर्स और लेफ्ट में रहेगा नेबुला। नेक्स्ट लाइन में हम लोग को f ऑफ x को एलिमिनेट करना है लेकिन नहीं काटना है, तो नेबुला आएगा 1 माइनस ई इनवर्स। सो आवर डेल्टा इज e माइनस 1 and our nebula is 1 minus e inverse. So this is a very important relations between forward difference operator, backward difference operator with shift operator. Okay, हम लोग आगे जाके जितना भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ये दो रिलेशंस को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे एज ए फॉर्मूला। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर मुझे लगा जो यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए वो है डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। द डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ x नॉट कॉमा x1 is denoted by f of x naught comma x1 or within third bracket x naught comma x1 and is defined as f of x naught comma x1 equals to f of x naught minus f of x1 by x naught minus x1। तो तुम लोगों को ये डेफिनेशन को मेमोराइज करके रखना है, ठीक है। तो किसी किसी किताब में डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को ऐसे लिखा जाता है, किसी किसी किताब में इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है थर्ड ब्रैकेट में, और कहीं पर डायरेक्ट थर्ड ब्रैकेट में x नॉट कॉमा x1 ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर यही यूज़ करूँगा। सो व्हाट इज f ऑफ x नॉट कॉमा x1, दैट इज f ऑफ x नॉट माइनस f ऑफ x1 और डिवाइडेड बाई x नॉट माइनस x1। अभी देखो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो करने से क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा x1 माइनस x0 और न्यूमरेटर में आ जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, ठीक है। सो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 बाई x1 माइनस x0 इज f ऑफ x1 कॉमा x0। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि f ऑफ x0 कॉमा x1 इक्वल्स टू f ऑफ x1 कॉमा x0 मीन्स जो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करके चलता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, ओके, फर्स्ट ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर इज f ऑफ x0 कॉमा x1 कॉमा x2। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग को 2 एलिमेंट्स चाहिए, सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग को 3 एलिमेंट्स लगेगा, फोर्थ ऑर्डर के लिए 5 लगेगा, थर्ड ऑर्डर के लिए 4 लगेगा। मतलब कि जितना ऑर्डर का हम लोग का डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है उससे एक ज़्यादा हम लोग को एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। नाउ f ऑफ x0 कॉमा x1 कॉमा x2 इज f ऑफ x0 कॉमा x1 माइनस f ऑफ x1 कॉमा x2 होल डिवाइडेड बाई x0 माइनस x2। तो मैंने डिनोमिनेटर से x0 माइनस x2 को अलग से कॉमन ले लिया, तो हम लोग को रहेगा f ऑफ x0 कॉमा x1 माइनस f ऑफ x1 कॉमा x2। अभी अगर इसको हम लोग डेफिनेशन में डालते हैं तो क्या आएगा, f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 बाई x0 माइनस x1, बीच का माइनस यहाँ पर रहेगा,
and f of x1 comma x2 is f of x1 minus f of x2 by x1 minus x2. अभी इसको हम लोग को स्प्लिट करना है, मतलब f of x नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस x1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा f of x1 बाई एक्स नॉट माइनस x1, यहाँ पर माइनस आएगा f of x1 बाई x1 माइनस x2, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस f of x2 बाई x1 माइनस x2. ओके, तो बाहर का जो टर्म है 1 बाई एक्स नॉट माइनस x2, इसके साथ अंदर का हर टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो देखो ये दो मिलके हो जाएगा f of x नॉट बाई एक्स नॉट माइनस x1 इंटू एक्स नॉट माइनस x2. ठीक है, अभी इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर मैं तुम लोग को अलग से दिखाता हूँ, माइनस f of x1 बाई एक्स नॉट माइनस x1 माइनस f of x1 बाई x1 माइनस x2. ओके, तो माइनस एलसीएम बनेगा एक्स नॉट माइनस x1 माइनस x2. मैं ऊपर का जो न्यूमरेटर्स है उसमें से f of x1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अभी रहेगा 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x1 माइनस x2. ठीक, और ये दोनों से मैंने पहले ही माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रहेगा प्लस, और यहाँ पर f of x1 कॉमन जाके बाकी जो 1 है उसके साथ ये टर्म हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा x नॉट माइनस x1. ओके, दैट इज माइनस, अभी ब्रैकेट को ओपन करने से क्या आएगा, x1 माइनस x2 प्लस x नॉट माइनस x1, नीचे जो है ऐसे रहने दो, x नॉट x1 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x1. ओके, तो यहाँ पर x1 और प्लस x1 एलिमिनेट हो जाएगा, और मैंने ये माइनस को अगर ऊपर का जो टर्म्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा x2 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस x1 इंटू x1 माइनस x2, उसके साथ f ऑफ x1 इंटू करके है. तो बीच का जो दो टर्म्स है उसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आएगा. इसके साथ बाहर का जो टर्म है 1 बाई एक्स नॉट माइनस x2, उसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा f ऑफ x1 बाई x1 माइनस एक्स नॉट इंटू x1 माइनस x2. तो थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर f of x naught comma x1 comma x2 is f of x naught by x naught minus x1 into x naught minus x2 plus f of x1 by x1 minus x naught into x1 minus x2 plus f of x2 by x2 minus x naught into x2 minus x1. मतलब कि देखो यहाँ पर x नॉट है तो x नॉट से x1 को सब्ट्रैक्ट करना है, x नॉट से x2 को सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पर x1 है तो x1 से x नॉट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1 से x2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन x1 से x1 को नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब कि इन्फिनिटी बन जाएगा. और यहाँ पर f ऑफ x2 है x2 माइनस एक्स नॉट x2 माइनस x1. तो ये जो मैंने डिराइवेशन तुम लोग को दिखाया सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, इसका डिराइवेशन एज ए प्रॉब्लम बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चंस में आता है, बीएससी का क्वेश्चंस में भी आता है, तो तुम लोग को इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है. तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को ऊपर में एक प्रॉब्लम तुम लोग को अभी करके दिखाता हूँ. देखो, इफ f of x equals to x cube, show that f of x naught, x1, x2, x3 is a constant. constant मतलब कि रिजल्ट में ये सब नंबर्स नहीं आएगा, एक प्योर नंबर आएगा 1 2 3 4 0 ऐसे करके. तो here f of x equals to x cube. So f of x naught, x1 is f of x naught minus f of x1 by x naught minus x1. ये तो डेफिनेशन हो गया. अभी अगर यहाँ पर अगर हम लोग x नॉट डालेंगे तो यहाँ पर भी x के बदले x नॉट डालेंगे, यहाँ पर x1 डालेंगे तो यहाँ पर x1 डालेंगे, यहाँ पर x2 डालेंगे तो यहाँ पर x2 डालेंगे. तो उस हिसाब से f ऑफ x नॉट हो जाएगा x नॉट क्यूब माइनस x1 क्यूब बाई x नॉट माइनस x1. Our numerator is now a cube minus b cube. A cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square. और नीचे का जैसा वैसा रहने दो. तो ऊपर का बन जाएगा x नॉट माइनस x1 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस x नॉट x1 प्लस x1 स्क्वायर, और नीचे का x नॉट माइनस x1. तो x नॉट माइनस x1 को ऐसा हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो रहेगा x नॉट स्क्वायर प्लस x नॉट x1 प्लस x1 स्क्वायर. तो ये हो गया f ऑफ x नॉट
कॉमा x1 दैट इज x0 स्क्वायर प्लस x0 x1 प्लस x1 स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। अभी सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे तो क्या लेंगे, f ऑफ x0 कॉमा x1 कॉमा x2। तो इसका डेफिनेशन से हम लोग को पता है कि इसका डेफिनेशन से आएगा f ऑफ x0 कॉमा x1 माइनस f ऑफ x1 कॉमा x2 होल डिवाइडेड बाय x0 माइनस x2। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है x0 स्क्वायर प्लस x0 x1 प्लस x1 स्क्वायर, बीच का माइनस डाल दिया। और इसका कितना आना चाहिए, इसका आना चाहिए x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। देखो जस्ट कंपेयर करके देखो, f ऑफ x1 कॉमा x2 ये कितना होना चाहिए, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। ओके, और नीचे का जैसा है डिनोमिनेटर वैसे ही रहने दो। तो अभी हम लोग अगर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो क्या आएगा, x0 स्क्वायर प्लस x0 x1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x1 x2 प्लस माइनस माइनस x2 स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, रहेगा x0 स्क्वायर माइनस इसको सामने लेके यहाँ पर लिख दिया माइनस x2 स्क्वायर प्लस x0 x1 माइनस x1 x2। तो इन दोनों को मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में डालना है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो रिजल्ट आएगा x0 प्लस x2 इंटू x0 माइनस x2। और इन दोनों में से अगर हम लोग x1 कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा, x0 माइनस x2। अभी ओवरऑल x0 माइनस x2 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग रहेगा x0 प्लस x2 प्लस x1। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x0 माइनस x2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो रहेगा x0 प्लस x1 प्लस x2। सो दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, दैट इज f of x0 comma x1 comma x2 is x0 plus x1 plus x2. So third order divided difference according to definition, f of x0 comma x1 comma x2 comma x3 is f of x0 x1 x2 minus f of x1 x2 x3 by x0 minus x3। मतलब कि जब थर्ड ऑर्डर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर माइनस सेकेंड ऑर्डर बाई x0 माइनस x2, मतलब कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ओके, तो इसका अभी रिजल्ट कितना आया है, इसका रिजल्ट आया है x0 प्लस x1 प्लस x2 माइनस इसका रिजल्ट आया है x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई x0 माइनस x3। ब्रैकेट ओपन करने से देखो सब काटेगा, सिर्फ रहेगा x0 माइनस x3। तो न्यूमरेटर में हम लोग के पास आया x0 माइनस x3 और डिनोमिनेटर में भी आया x0 माइनस x3, तो इसको काटने से आ जाएगा 1। Now this result is independent of x0, x1, x2, x3. So you can say f of x0, x1, x2, x3 is nothing but constant. This is the required proved. Given f of x equals to 1 by x square, find the divided difference a, b। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि डिवाइडेड डिफरेंस को हम लोग f of a, b ऐसे करके एक्सप्रेस कर सकते, f of a, b ऐसे करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, और विद इन थर्ड ब्रैकेट a, b ऐसे करके भी एक्सप्रेस कर सकते। तो क्वेश्चन में जैसा रहेगा हम लोग उस हिसाब से इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो गिवन f of x equals to 1 by x square, find the divided difference within third bracket a, b. Now divided difference of a, b is according to definition f of a minus f of b whole divided by a minus b. So what is f of a? देखो यहाँ पर f of x है 1 by x square। तो अगर यहाँ पर हम लोग f of a लिखेंगे तो राइट साइड में जहाँ जहाँ पर x होगा उस वहाँ पर हम लोग को a लिखना है। तो f of a हो जाएगा 1 by a square एंड f of b होगा 1 by b square। So f of a 1 by a square minus 1 by b square by a minus b। अभी ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग को a square b square का एलसीएम लेना है, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी होल स्क्वायर। तो उसके ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अभी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए इसी सब लिख सकते हैं। मतलब कि देखो ये पार्ट को हम लोग चाहे तो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए इस हिसाब से लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग बी माइनस ए के बदले a माइनस बी लिखेंगे तो सामने एक माइनस आ जाएगा और नीचे होगा ए बी होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो ऊपर का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया माइनस माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई ए बी होल स्क्वायर और नीचे है ए माइनस बी। तो ऊपर का ए माइनस बी नीचे का ए माइनस बी हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो रहेगा ऊपर में
ए प्लस बी और नीचे रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. मीन्स यू कैन से divided difference of a comma b is minus a plus b by a square b square where f of x is 1 by x square. So next question देखो, ये question बहुत बार एग्जाम में आया है. The question is nabla into delta equals to delta into nabla equals to delta minus nabla equals to delta square. मतलब कि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ही आए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आए, या फिर सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म आए, कोई भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है. So we know from the relation between delta with shift operator and nabla with shift operator, delta equals to e minus 1 and nabla equals to 1 minus e inverse. अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो तुम लोगों को ये जो रिलेशंस है, ये रिलेशंस को डिराइव करके दिखाना है. लेकिन अगर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इसको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला लिख सकते हो. लेकिन अगर 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो तब हम लोगों को ये जो दो रिलेशन है इसको डिराइव करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा. सो हियर डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस 1 एंड नैबला इक्वल्स टू 1 माइनस ई इनवर्स मैंने यहाँ पर पकड़ लिया. सो डेल्टा इंटू नैबला और यू कैन से नैबला इंटू डेल्टा, दैट इज नैबला का बदले मैंने 1 माइनस ई इनवर्स लिखा इंटू ई माइनस 1. अभी जैसे एलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू ई माइनस 1 माइनस ई इनवर्स ई माइनस माइनस प्लस ई इनवर्स. ई इनवर्स और ई बन जाएगा 1, सामने माइनस है तो माइनस लिखा और यहाँ पर ई प्लस ई इनवर्स एक साथ लिख दिया. सो ई प्लस ई इनवर्स माइनस वन इज माइनस 2. सो दिस इज आवर नैबला इंटू डेल्टा. नेक्स्ट देखो डेल्टा इंटू नैबला. डेल्टा का बदले मैंने ई माइनस 1 डाला और नैबला का बदले 1 माइनस ई इनवर्स डाला. उसको सिंप्लीफाई करने से आएगा ई प्लस ई इनवर्स माइनस 2. मतलब देखो ये जो दो रिजल्ट्स है दोनों रिजल्ट सेम आ गया. सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि नैबला इंटू डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा इंटू नैबला, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं. सो यू कैन से फर्स्ट प्रूफ इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट पर देखो डेल्टा माइनस नैबला, फिर डेल्टा का बदले ई माइनस 1 माइनस नैबला का बदले 1 माइनस ई इनवर्स, ब्रैकेट ओपन करने से ई प्लस ई इनवर्स माइनस 2 आया. तो सिमिलरली वी कैन से नैबला इंटू डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा इंटू नैबला इक्वल्स टू डेल्टा माइनस नैबला. Last one, that is delta square. Now what is delta? Delta is known as central difference operator, means delta is e to the power half minus e to the power minus half, that is central difference operator. तो यहाँ पर अगर स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली राइट साइड में भी होल स्क्वायर होगा. तो अभी इसको हम लोग a समझेंगे और इसको b समझेंगे. सो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी. ऑल राइट. तो e टू द पावर हाफ उसका स्क्वायर करने से e आएगा, प्लस e टू द पावर माइनस हाफ उसका स्क्वायर करने से माइनस 1 आएगा, और e टू द पावर हाफ e टू द पावर माइनस हाफ मिलके हो जाएगा 1, सो रहेगा 2. सो रिजल्ट इज डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू e प्लस ई इनवर्स माइनस 2. तो देखो जितना भी रिलेशन है डेल्टा नैबला सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सभी को अगर हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आउटपुट्स रिजल्ट्स सेम ही आता है. सो वी कैन से डेल्टा इंटू नैबला इक्वल्स टू नैबला इंटू डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा माइनस नैबला इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर. सो दिस completes the proof. Okay, next question, very important question. Prove that delta of log of f of x equals to log of within third bracket 1 plus delta of f of x by f of x. तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड से राइट साइड में कैलकुलेशन किया है, तुम लोग चाहो तो राइट से लेफ्ट में भी जा सकते हो. सो व्हाट इज डेल्टा ऑफ log of f of x? वी नो डेल्टा ऑफ f of x इज f of x plus h माइनस f of x. ओके, तो अगर log फंक्शन के साथ इसको ऐड किया जाए तो क्या आएगा? डेल्टा ऑफ log of f of x will be log of f of x plus h minus log of f of x. Okay, so now this is our a and this is our b, and we know log a minus log b is log a by b. Okay, log a minus log b is log a by b. So log of f of x plus h minus log of f of x is log of f of x plus h by log of by f of x. Okay, तो ऊपर का जो पोर्शन है उसको मैंने थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई किया. मैंने यहाँ पर f of x plus h माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स लिखा. क्यों लिखा? क्योंकि ये पार्ट के बदले मुझे डेल्टा f of x लिखना है.
और जो एफ ऑफ एक्स पार्ट है वो एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के बदले नेक्स्ट लाइन में डेल्टा एफ एक्स लिख दिया, और जो प्लस एफ ऑफ एक्स है वो जैसा है वैसा ही लिखा, और नीचे का एफ ऑफ एक्स है। अभी इसको हम लोगों को स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने से क्या आएगा, लॉग ऑफ डेल्टा एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स। अभी एफ एक्स बाई एफ एक्स एलिमिनेट होकर हो जाएगा 1 और आएगा डेल्टा एफ एक्स बाई एफ एक्स। फिर हम लोग को पता है कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो 1 पहले लिखेंगे एंड डेल्टा एफ एक्स बाई एफ एक्स को बाद में लिखेंगे। सो रिजल्ट इज log 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स बाई एफ एक्स। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग राइट से भी लेफ्ट में जा सकते हो। अगर राइट से लेफ्ट में जाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एकदम बैक कैलकुलेशन करके देखो। log थर्ड ब्रैकेट ओपन 1 प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे। फिर log ऑफ ऐसे एफ ऑफ एक्स एलसीएम लेंगे तो 1 के बदले आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स के बदले हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ऑलराइट, तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एफ एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, रहेगा लॉग, ऊपर रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई एफ ऑफ एक्स। नाउ लॉग ए बाई बी, log a by b is log a minus log b, that is log f of x plus h minus log f of x, that is equals to delta of log f of x. ओके, तो ऐसे करके हम लोग चाहे तो राइट से भी लेफ्ट साइड में जा सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग ऑपरेटर रिलेशन 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस नेबला इक्विवेलेंट टू 1। वी नो डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस 1 एंड नेबला इक्वल्स टू 1 माइनस ई इनवर्स। ये दो रिलेशन हम लोग को पहले से पता है, हम लोग इसको एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन का मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा है तो हम लोगों को इसको डिराइव करके फिर उसको यूज करना है। डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस 1, सो 1 प्लस डेल्टा इज ओनली ई एंड नेबला इक्वल्स टू 1 माइनस ई इनवर्स। सो बाय ट्रांसपोजिंग मैंने नेबला को राइट साइड में और इनवर्स को लेफ्ट साइड में डाल दिया, तो ई इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस नेबला। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस नेबला इक्वल्स टू ई इंटू इनवर्स, एंड ई इंटू इनवर्स इज 1 विच इज द रिक्वायर्ड proved. Okay, so our next question, इसका प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग को थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको देखना है। तो ये प्रॉब्लम को प्रूफ करने के लिए मैं मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करूंगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ h इज वेरी स्मॉल देन प्रूव दैट डेल्टा टू द पावर n प्लस 1 f ऑफ x नॉट इक्विवेलेंट टू h टू द पावर n प्लस 1 f ऑफ n प्लस 1 x नॉट। दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव। ओके, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स नॉट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है एफ डबल डैश एक्स नॉट। तो इसको अगर हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वन एक्स नॉट, सेकेंड ऑर्डर को एफ ऑफ 2 एक्स नॉट, थर्ड ऑर्डर को एफ ऑफ 3 एक्स नॉट, हम लोग चाहे तो इस हिसाब से लिख सकते। तो यहाँ पर एफ ऑफ एन प्लस 1 एक्स नॉट इज एन प्लस 1 है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ओके, एट द पॉइंट एक्स नॉट। सो डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन है एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई h। एक्स नॉट पॉइंट में होगा डेरिवेटिव, तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। हम लोग को पता है कि डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स। सो डेफिनेटली डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट होगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ओके, तो मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट के बदले डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट डाल दिया। तो अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको नहीं लिखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एफ डैश एक्स नॉट इक्विवेलेंट टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट बाई h। तो h से मल्टीप्लाई करने से आएगा h इंटू एफ डैश एक्स नॉट इक्विवेलेंट टू डेल्टा इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। ओके, सो देखो अगर n का वैल्यू 0 होता है तो ये जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। सो the result is true for first order forward difference operator. Now second order derivative f double dash x naught equals to limit h tends to 0 f dashed x naught plus h minus f dashed x naught whole divided by h, that is equals to limit h tends to 0। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ h को मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में आएगा h इंटू एफ डैश्ड एक्स नॉट प्लस h माइनस h एफ डैश्ड एक्स नॉट होल डिवाइडेड बाई h इंटू h इज h स्क्वायर। This h into f dashed x naught plus h is
डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। देखो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स नॉट प्लस एच लिखेंगे तो राइट साइड में भी एक्स नॉट प्लस एच लिखेंगे, तो उस हिसाब से एच इंटू एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच विल बी डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच होगा यहाँ पर, माइनस बाकी एच इंटू एफ डैश एक्स नॉट इज डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट। ओके, अगेन यहाँ पर न्यूमरेटर का जो पार्ट है डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट, इसके बदले हम लिखेंगे डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट, मीन्स सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। फिर अगर हम लोग लिमिट यूज नहीं करेंगे तो ये इक्वल बन जाएगा इक्विवेलेंट। सो लेफ्ट साइड का एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू राइट साइड में हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्विवेलेंट टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट। सिंस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने दिखाया कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 1। So let us suppose that the result is true for n equals to m, मतलब कि n equals to m के लिए ये result true होगा। तो उस हिसाब से h to the power m f of m x naught equivalent to delta to the power m f of x naught। ओके, ऐसा लिखेंगे। अभी हम लोगों को प्रूफ करना है कि अगर ये रिजल्ट n equals to m के लिए ट्रू होता है तो ये रिजल्ट ट्रू होगा n equals to m plus 1 के लिए। ओके, दिस इज द रूल। So we have to verify the result for n equals to m plus 1. That is f of m plus 1 x naught equals to limit h tends to 0 f m x naught plus h minus f m x naught। ओके, नेक्स्ट लाइन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h टू द पावर m से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर h टू द पावर m से अगर हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा डेल्टा टू द पावर m f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस इसको लिखेंगे डेल्टा टू द पावर m f x नॉट। फिर इसको इवेल्युएट करने से आएगा डेल्टा टू द पावर m इनटू ब्रैकेट में डेल्टा ऑफ f x नॉट। ओके, बिकॉज डेल्टा ऑफ f ऑफ x नॉट इज f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट, और बाकी जैसा है ऐसा रहने दो। तो अगर लिमिट को एलिमिनेट करेंगे तो उसके बदले इक्विवेलेंट साइन आ जाएगा m प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x नॉट इक्विवेलेंट टू डेल्टा टू द पावर m प्लस 1 f x नॉट बाई h टू द पावर m प्लस 1। अभी h टू द पावर m प्लस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा कि डेल्टा टू द पावर m प्लस 1 f ऑफ x नॉट इक्विवेलेंट टू h टू द पावर m प्लस 1 into f of m plus 1 x naught. So the result is true for n equals to m plus 1 when it is true for n equals to m. Also the result is true for n equals to 0 and n equals to 1. Hence by the method of mathematical induction the result is true for any real value of n belongs to capital I, means any integer value of n. So हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा टू द पावर n प्लस 1 f of x नॉट इक्विवेलेंट टू h टू द पावर n प्लस 1 into n plus 1th derivative of f of x नॉट। So this completes the proof.